Welcome to Still Learning. Today we will be breaking down the different types of companies in a simple and easy to follow way. Let's get started with the basics so you can grasp these concepts quickly. First, let's explore how companies are classified on the basis of liability, on the basis of members, on the basis of control, and on the basis of access to capital. On the basis of liability, companies are divided into company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited company. On the basis of members, one person company, private company, small company, and public company. On the basis of control, holding company, subsidiary company, and associate company. On the basis of access to capital, listed company and unlisted company. Now, let's explore how companies are classified on the basis of liability. So, company limited by shares. A company limited by shares is a common form of business structure where the liability of the shareholders is limited to the amount they have invested in the company. This means that if the company faces financial difficulties or incurs debts, the shareholders are only responsible for the company's debts up to the amount of their unpaid shares, protecting their personal assets from being used to cover these liabilities. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक कॉमन बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी उनके इन्वेस्टेड अमाउंट तक लिमिटेड होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं या वो डेट्स इनकर करती हैं तो शेयर होल्डर्स सिर्फ अपने अनपेड शेयर्स के अमाउंट तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि उनकी पर्सनल एसेट्स जैसे हाउस या बैंक बैलेंस इन लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। यानी अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ उनका इन्वेस्टेड अमाउंट ही लूज़ करना पड़ता है, उनकी पर्सनल वेल्थ सेफ रहती है। ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है कि उनकी पर्सनल फाइनेंसेस पर कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन का कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. A company limited by guarantee is a type of legal structure typically used for non-profit organizations. Instead of shareholders, it has members who act as guarantors. These guarantors agree to pay a fixed amount, usually small, if the company faces financial trouble. The company does not distribute profits to members as its purpose is to serve a particular cause rather than generate profit. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक लीगल स्ट्रक्चर है जो अक्सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है। इस टाइप की कंपनी में शेयर होल्डर्स की जगह मेंबर्स होते हैं जो गारंटर्स के रूप में काम करते हैं। ये गारंटर्स एक फिक्स्ड अमाउंट जो अक्सर छोटा होता है पे करने के लिए तैयार होते हैं अगर कंपनी को फाइनेंशियल ट्रबल होती है। इस टाइप की कंपनी का मेन पर्पस प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता बल्कि किसी स्पेसिफिक कॉज या मिशन को सर्व करना होता है। इसीलिए कंपनी अपने मेंबर्स को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ये स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल है जो सोशल, एजुकेशनल या चैरिटेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जहां फाइनेंशियल प्रॉफिट से ज़्यादा कम्युनिटी सर्विस या पब्लिक बेनिफिट पर फोकस होता है। नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी. An unlimited company is a type of company where there is no limit on the liability of its members or shareholders. In other words, if the company faces financial difficulties or goes into debt, the members or shareholders are personally liable for all the company's debts and obligations, even if this means using their personal assets to pay them off. अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां मेंबर्स या शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है या वो डेट्स में चली जाती हैं तो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स को कंपनी के सारे डेट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए पर्सनली लायबल होना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स जैसे होम, कार या बैंक बैलेंस यूज़ करके इन डेट्स को पे करना पड़ सकता है। ये स्ट्रक्चर उन सिचुएशंस में होता है जहां मेंबर्स को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर पूरा ट्रस्ट होता है, लेकिन ये भी रिस्क के साथ आता है क्योंकि उनकी पर्सनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है अगर कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाए। नेक्स्ट इज on the basis of members. One person company, a company owned and operated by a single individual, a hybrid between a sole proprietorship and a private limited company, provides limited liability to the owner while allowing them to manage the company independently, popular in countries like India. वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओन्ड और ऑपरेटेड होती है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बीच एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ओनर को लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है तो ओनर की पर्सनल एसेट्स कंपनी के डेट्स को कवर करने के लिए यूज़ नहीं होती। इसके साथ ही ओनर को कंपनी को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने की आज़ादी भी मिलती है एंड दीज कंपनीज आर पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक इंडिया. Next is private company.
A business entity owned by private individuals or corporations, shares are not traded publicly and ownership is restricted, commonly set up by families or a small group of investors, offers limited liability to its shareholders. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस द्वारा ओन्ड होती है। इस कंपनी के शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं किए जाते और ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी सिर्फ कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ही शेयर्स रख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आमतौर पर फैमिलीज या छोटे इन्वेस्टर्स के ग्रुप्स द्वारा सेटअप किया जाता है। इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये शेयर होल्डर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफर करता है, मतलब अगर कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या डेट फेस करना पड़ता है तो शेयर होल्डर्स सिर्फ उनके इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका फायदा ये है कि उनकी पर्सनल एसेट्स कंपनी के लाइबिलिटीज से प्रोटेक्टेड रहती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज काफ़ी फ्लेक्सिबल और मैनेजेबल होती हैं और ये एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर का एडवांटेज देती हैं बिना पब्लिक स्क्रूटनी या कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस के। नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनी, a private company that meets certain criteria related to turnover and paid up capital. Criteria vary by jurisdiction. For example, in India, it refers to companies with a turnover of less than rupees 100 crore and paid up capital under rupees 2 crore. Enjoy certain relaxations in compliance requirements compared to larger companies. So, small companies ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करती हैं जो टर्नओवर और पेड अप कैपिटल से जुड़ी होती हैं। ये क्राइटेरिया ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में स्मॉल प्राइवेट कंपनी वो होती हैं जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है और पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से नीचे है। ये कंपनीज लार्जर कंपनीज के कंपैरिजन में कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स में कुछ रिलैक्सेशंस का फायदा उठाती हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कुछ रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो उनके लिए ऑपरेशन को आसान बनाता है। ये स्ट्रक्चर छोटी बिजनेसेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट हेल्प करता है क्योंकि ये उन्हें रेगुलेटरी बर्डन से कुछ रिलीफ देता है, साथ ही उनके लिए बिजनेस मैनेज करना भी आसान होता है। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, अ कंपनी whose shares are offered to the general public and traded on a stock exchange, allows for raising large amount of capital through public share offerings subject to stricter regulations, reporting and governance standard. Shares are freely transferable providing liquidity for shareholders. Public limited companies एक ऐसी कंपनीज होती हैं जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कंपनी पब्लिक शेयर ऑफरिंग्स के थ्रू लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल रेज कर सकती हैं। इस टाइप की कंपनी को स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये पब्लिक इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रही होती हैं। ये रेगुलेशंस इंश्योर करते हैं कि कंपनी ट्रांसपेरेंट रहे और इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं जो शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स कभी भी अपने शेयर्स बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं जिससे उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल मिलता है। ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन उन्हें कंप्लायंस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, a company that owns a controlling interest in one or more other companies known as subsidiaries does not typically engage in day-to-day operations of those subsidiaries, holds majority shares more than 50% in the subsidiary company to exert control. होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक या ज़्यादा दूसरी कंपनीज जिसे सब्सिडियरीज कहा जाता है में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखती है। ये होल्डिंग कंपनी आमतौर पर सब्सिडियरीज के डे टू डे ऑपरेशंस में डायरेक्टली इंगेज नहीं होती। इस टाइप की कंपनी सब्सिडियरीज में मेजॉरिटी शेयर्स 50% से ज़्यादा रखती हैं जिसे ये कंट्रोल एक्सर्ट कर सकती हैं। होल्डिंग कंपनी का मेन पर्पस सब्सिडियरीज के ऑपरेशंस को ओवरसी करना और उनकी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन तय करना होता है, जबकि इंडिविजुअल सब्सिडियरीज अपने डेली बिजनेस ऑपरेशंस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करती हैं। होल्डिंग कंपनीज काफ़ी स्ट्रैटेजिक होती हैं क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट्स का मौका देती हैं, जैसे टैक्स एडवांटेजेस या एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। ये स्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स को एक कंसोलिडेटेड व्यू देने में भी मदद करता है जिससे उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बेटर कंट्रोल मिलता है। सब्सिडियरी कंपनी, a company that is controlled by a holding company. The holding company owns more than 50% of its shares, giving it authority over business decisions, operates independently but must align with the holding company's overall strategy and policies,
कैन बी वुली ओन 100% शेयर्स और पार्शियली ओन। सब्सिडियरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एक होल्डिंग कंपनी द्वारा कंट्रोल की जाती है। इस होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी के शेयर्स का 50% से ज्यादा ओनरशिप होता है, जो उसे बिजनेस डिसीजंस पर अथॉरिटी देता है। ये सब्सिडियरी कंपनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, लेकिन उसे होल्डिंग कंपनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज के साथ अलाइन करना पड़ता है। सब्सिडियरी कंपनी वुली ओन्ड भी हो सकती हैं, 100% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास या पार्शियली ओन्ड हो सकती हैं। इस स्ट्रक्चर का फायदा ये है कि होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरीज के ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सकती हैं, जबकि सब्सिडियरीज अपने डेली ऑपरेशंस को अपने हिसाब से मैनेज करती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी, अ कंपनी इन विच और इंडिपेंडेंस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जो स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, associate company, a company in which another company often holding company has significant influence, typically defined as owning 20% to 50% of the voting shares. The investor does not have control but can participate in decision making and policy formulation. Financial results of associate companies are often reported using the equity method, where the investor reflect its shares of profits or losses. एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें किसी दूसरी कंपनी जो अक्सर होल्डिंग कंपनी होती है का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, जो आमतौर पर वोटिंग शेयर्स का 20% से 50% तक ओनरशिप डिफाइन करता है। इस स्ट्रक्चर में इन्वेस्टर के पास कंट्रोल नहीं होता, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अक्सर इक्विटी मेथड के थ्रू रिपोर्ट किया जाता है, जहां इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट या लॉसेस का हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है। ये मेथड इन्वेस्टर को उसकी ओनरशिप के हिसाब से एसोसिएट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक एक्यूरेट व्यू देने में हेल्प करता है, जिससे इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के इम्पैक्ट को समझने का मौका मिलता है। एसोसिएट कंपनीज के साथ इन्वॉल्वमेंट से डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को भी प्रमोट किया जा सकता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए फायदेमंद होता है। नाउ, on the basis of access to capital, listed company. A listed company is one whose shares are traded on a public stock exchange, allowing the general public to buy and sell shares freely. These companies must comply with stringent regulations, regularly disclose financial information, and provide transparency to their investors. Being listed gives companies access to a broader pool of capital and liquidity, but also subjects them to more scrutiny. लिस्टेड कंपनीज एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर्स पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, जिससे जनरल पब्लिक को शेयर्स खरीदने और बेचने की आज़ादी मिलती है। इन कंपनीज को स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस के का सामना करना पड़ता है, रेगुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करनी होती है। कंपनी के लिस्टेड होने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ब्रॉडर पूल ऑफ कैपिटल और लिक्विडिटी तक एक्सेस पाती है, जिसका मतलब है कि कंपनी इजीली फंड्स रेज कर सकती है और इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स को आसानी से बाय या सेल करने का राइट देती है। लेकिन लिस्टेड कंपनीज को ज़्यादा स्क्रूटनी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पर नजर रखते हैं। ये स्ट्रक्चर कंपनीज को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन उन्हें कंप्लायंस और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अनलिस्टेड कंपनी, एंड अनलिस्टेड कंपनी इज not traded on a public exchange and its shares are privately or held by a small group of investors or individuals. These companies face fewer regulatory requirements and enjoy more privacy, but raising capital is often more challenging and share trading is limited to private agreements. अनलिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होती और इसके शेयर्स छोटे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या इंडिविजुअल्स के द्वारा प्राइवेटली हेल्ड होते हैं। इन कंपनीज को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का सामना करने की ज़रूरत नहीं होती, जिससे उन्हें ज़्यादा प्राइवेसी मिलती है। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज को कैपिटल रेज करना अक्सर चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन्हें पब्लिक इन्वेस्टर्स से फंड्स नहीं मिलते। इसके अलावा शेयर ट्रेडिंग सिर्फ प्राइवेट एग्रीमेंट्स के थ्रू होती है, जो लिक्विडिटी को लिमिट कर सकता है। ये स्ट्रक्चर छोटी बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इन्हें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का फायदा मिलता है। लेकिन कैपिटल एक्सेस की कमी और लिमिटेड शेयर ट्रेडिंग ऑप्शंस इन कंपनीज के लिए ग्रोथ और एक्सपेंशन में रुकावट भी डाल सकती हैं। So these are the various types of companies. I hope this explanation made things clearer for you. If you still have any questions or need further clarification, leave your queries in the comments. I will make sure to help you out.